जकरिया पढ़ेंगे 12 चैप्टर, 13 चैप्टर, 14 चैप्टर। किंग्स जेम्स वर्जन में से पहले पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रिबांता akasianzu guburokusa berre berre khatin il ahaba kasianduro dare beketin ira ahlara baha kasiandura glahdallalaba akasia kum darahase wehtiin rabaha akasianduro radin ikal raba akasihas kulba ashkar khatin रबांता कासा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जकरिया 12 चैप्टर। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, हमें सहायता करो कि हम आपके द्वारा भेद और रहस्य को समझ सके और परमेश्वर की ओर हमारा झुकाव बढ़ जाए, ताकि हमारा न्याय के समय परमेश्वर के दया के अनुग्रह के अधीन हम रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। Chapter 12, Zechariah chapter 12, Jerusalem, a cup of trembling, and a burdensome stone to the confusion of her adversaries. Victorious restoring of Judah, repentance of Jerusalem. First verse. The burden of the word of the Lord for Israel, saith the Lord, which stretcheth forth the heavens and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him. Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about, when they shall be in the siege both against Judah and against Jerusalem. And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people. All that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it. In that day, saith the Lord, I will smite every horse with astonishment, and his rider with madness, and I will open mine eyes upon the house of Judah, and will smite every horse of the people with blindness. And the governors of Judah shall say in their heart, the inhabitants of Jerusalem shall be my strength in the Lord of hosts their God. In that day will I make the governors of Judah like an hearth of fire among the wood, and like a torch of fire in a sheaf, and they shall devour all the people round about on the right hand and on the left, and Jerusalem shall be inhabited again in her own place, even in Jerusalem. The Lord also shall save the tents of Judah first, that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem do not magnify themselves against Judah. In that day shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem, and he that is feeble among them at that day shall be as David, and the house of David shall be as God, as the angel of the Lord before them. And it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications, and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. In that day shall there be a great mourning in Jerusalem, as the mourning of Hadad Rimmon in the valley of Megiddon. And the land shall mourn every family apart, the family of the house of David apart, and their wives apart, the family of the house of Nathan apart, and their wives apart, the family of the house of Levi apart, and their wives apart, the family of Shimei apart, and their wives apart, all the families that remain, every family apart, and their wives apart. Chapter 13, Fountain of Purgation of
purgation for Jerusalem from idolatry and false prophecy, death of Christ, and trial of a third part. In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness, and it shall come to pass in that day, saith the Lord of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered. And also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land. And it shall come to pass that when any shall yet prophesy, then his father and his mother that begat him shall say unto him, Thou shalt not live, for thou speakest lies in the name of the Lord. And his father and his mother that begat him shall thrust him through when he prophesieth. And it shall come to pass in that day that the prophets shall be ashamed every one of his vision when he hath prophesied, neither shall they wear a rough garment to deceive, but he shall say, I am no prophet, I am an husbandman, for man taught me to keep cattle from my youth. And one shall say unto him, What are these wounds in thine hands? Then he shall answer, Those with which I was wounded in the house of my friends. Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow, saith the Lord of hosts. Smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. And I will turn mine hand upon the little ones, and it shall come to pass that in all the land, saith the Lord, 2 parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried. They shall call on my name, and I will hear them. I will say, It is my people, and they shall say, The Lord is my God. Chapter 14. Destruction of Jerusalem. Coming of Christ, and graces of his kingdom. Plague of Jerusalem's enemies. The remnant shall turn in the Lord, and their spoils shall be holy. Behold, the day of the Lord cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. For I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished, and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. Then shall the Lord go forth and fight against those nations as when he fought in the day of battle. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south, and ye shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Azal. Ye shall flee like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. And the Lord my God shall come, and all the saints with thee. And it shall come to pass in that day that the light shall not be clear nor dark, but it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night. But it shall come to pass that at evening time it shall be light. And it shall be in that day that living waters shall go out from Jerusalem, half of them toward the former sea, and half of them toward the hinder sea. In summer and in winter shall it be. And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and his name one.
All the land shall be turned as a plain from Geba to Rimmon, south of Jerusalem, and it shall be lifted up and inhabited in her place from Benjamin's gate unto the place of the first gate, unto the corner gate, and from the tower of Hananiel, and unto the king's wine presses. And men shall dwell in it, and there shall be no more utter destruction, but Jerusalem shall be safely inhabited. And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. And it shall come to pass in that day that a great tumult from the Lord shall be among them, and they shall lay hold every one on the hand of his neighbor, and his hand shall rise up against the hand of his neighbor. And Judah also shall fight at Jerusalem, and the wealth of all the heathen round about shall be gathered together, gold and silver and apparel in great abundance. And so shall be the plague of the horse, of the mule, of the camel, and of the ass, and of all the beasts that shall be in these tents as this plague. And it shall come to pass that every one that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the feast of tabernacles. And it shall be that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even up on them shall be no rain. And if the family of Egypt go not up and come not, that have no rain, there shall be the plague wherewith the Lord will smite the heathen that come not up to keep the feast of tabernacles. This shall be the punishment of Egypt, and the punishment of all nations that come not up to keep the feast of tabernacles. In that day shall there be upon the bales of the horses holiness unto the Lord, and the pots in the Lord's house shall be like the bowls before the altar. Yea, every pot in Jerusalem and in Judah shall be holiness unto the Lord of hosts, and all they that sacrifice shall come and take of them and sit therein. And in that day there shall be no more the Canaanite in the house of the Lord of hosts. Zidan ikam rokul raha azeskin ba asiyala rahasa zedin ila raha akhatkin ba oshkar khatin ribant asiyalo roboho kosu zehzikam ba oshkar khatin irhal rabah akasi haskul barahantara redin ikam baro hoshkar khasianduro. जकरिया 12 अध्याय 13 अध्याय 14 अध्याय हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 12 अध्याय भविष्य में यरूशलेम का छुटकारा। पहले वचन से, इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। देखो, मैं यरूशलेम की चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने की मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा। जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे,
यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे और यरूशलेम जहां अब बसी है वही बसी रहेगी। यरूशलेम में ही यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बड़ाई मारे। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिद्दोन की तराई में हदद्रिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हरेक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने की परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों के परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हो हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। 13 अध्याय पहले वचन से। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। ये हो गया प्रभु यीशु मसीह के विषय में, ठीक है। 2 वचन से आगे, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में न रहेगी, और मैं भविष्यद्वक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा, और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। इसलिए जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको बेध डालेंगे। उस समय हरेक भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र न पहनेंगे, परंतु वह कहेगा मैं भविष्यद्वक्ता नहीं, किसान हूँ, क्योंकि लड़कपन ही से मैं दूसरों का दास हूँ। तब उससे यह पूछा जाएगा तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। प्रभु के चरवाहे को मार डालने की आज्ञा। 7 वचन से आगे, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तो उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर पितर हो जाएगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनको उनके विषय में कहूँगा ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ये हम मसीहों के बारे में है। यरूशलेम और अन्य जातियाँ हम आगे पढ़ेंगे। 14 वचन
14 अध्याय पहले वचन से। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा यह संग्राम के दिन में लड़ा था। वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। वह तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। यीशु मसीह जो उतरने वाला है, हम बोलते हैं ना यरूशलेम में जैतून के पर्वत के ऊपर वो उतरने वाला है। जहाँ से वो उठा लिया गया था वहीं पर वो दोबारा आने वाला है, ऐसा वचन है। तो इसके विषय में है ये, देखिए क्या है और आगे। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। हालेलुया। ये यीशु मसीह के आगमन का ये सारा वर्णन है जो अभी हमने पहाड़ के बारे में देखा, पर्वत के बारे में। उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण, देखिए यहाँ पे वो आप मत्ती में देखेंगे तो वहाँ पे भी वैसे ही लिखा है कि अगर ऊपर कोई बैठा है तो वहीं पर रुका रहे, अगर नीचे कोई है तो नीचे ही रुका रहे, अगर कोई खेत की तरफ जा रहा है तो वहीं पे जाए, घर को लौट के ना आए। ये सब लिखा हुआ है ना। तो ये यीशु मसीह के आगमन का वर्णन है और उस वर्णन के वक्त में इस्राएली यरूशलेमी लोगों के लिए कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस है, ओके। लेकिन हम लोगों के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है कि हमको उठा लिया जाने वाला है, ठीक है। और वो किस प्रकार से आने वाला है, उतरने वाला है, उसका ये सब वर्णन यहाँ पे लिखा हुआ है 6 वचन से आगे। उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। तभी मून मैजिक कहा जाएगा पता नहीं है ना। तभी सारे जो चांद का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, सारे पावर्स किधर जाएंगे पता नहीं। अभी तो बहुत मज़े ले रहे हैं लोग वो सारे शक्तियों का, लेकिन जब परमेश्वर बता रहा है वचन में कि इस प्रकार से वो ख़त्म होने वाला है, तब इन लोगों के पावर्स कहाँ जाएंगे पता नहीं, तब किस पावर के पीछे जाएंगे। ओके 8 वचन से आगे। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम की समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप न होगा और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपनी गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। अब देखिए, मैं आपको पूछ रही हूँ, ये ऐसा परमेश्वर है
ओके, जो यरूशलेम के बदला इस प्रकार से ले रहा है, वो हम लोगों का भी बदला लेता है। अगर हम लोगों का कैसा बदला लेगा, ये अगर वचन में से दिखाया जाएगा तो आप डर जाएंगे। ओके, ये यरूशलेम के बदला के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर। और जो हम लोगों को आप लोग सता रहे हैं, तो आप कोई भी गैर मसीह जो सता रहा है, तो उनका बदला परमेश्वर किस प्रकार से लेगा, अगर ये हमने वचन में से निकाल के बताया तो आप लोग डर जाएंगे। हाँ, तो इसके लिए हम लोग ये, इसीलिए हम लोग आपको कहते हैं कि आप मसीह के अनुसार चलिए, आप मसीह के विरोध मत जाइए, क्योंकि परमेश्वर दोनों तरफ से आपका नुकसान करेगा, आपका बदला भी लेगा। और दूसरी बात, अगर आप मसीह में नहीं, मसीह यीशु को उद्धार करता, पापों का माफ़ करने वाला नहीं ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर बोलता है मेरा कुछ नहीं जाएगा, आग की झील में मैं फेंक दूंगा, क्योंकि आखिरी शब्द जो है वो परमेश्वर ही का रहने वाला है। ओके, जो कुछ भी करना चाहता है वो परमेश्वर करना चाहता है, और कोई शक्ति इस विश्व के अंदर कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ परमेश्वर डिसाइड कर रहा है कि कौन रहना है कौन नहीं रहना है। ओके, तो आप लोगों को समय दिया है, आप मानो या मत मानो, परमेश्वर कहता है जो मान लिया उसको मैं अपनी तरफ ले रहा हूँ, जो नहीं मानना चाहता है वो कूड़े करकट की तरह आग की झील में कचरे की तरफ फेंक दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, उसकी मुझे भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए, हम जब बता रहे हैं आपको ये वचन, सुनाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, अगर आप कहे तो आपको और ज़्यादा जानकारियाँ मिलती है, तो आप समझ जाइए कि आपको यीशु मसीह पापों की माफ़ी करने वाला है, आपको स्वीकार करने के अलावा और आपके आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। आपको लगेगा नहीं नहीं, हमारी पीढ़ियाँ तो बहुत अच्छे से चल रही है, अरे हमारे 10 पीढ़ियाँ इतनी अच्छी चली और अभी तो हम डायमंड बेचने लगे, पहले तो हम गोल्ड बेचते थे, अभी हम डायमंड बेचने लगे। फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर यीशु मसीह पापों को माफ़ करता है, अगर आपने ग्रहण नहीं किया है अभी तक, तो फिर ख़त्म है आपका। 10 या 20 पीढ़ियाँ डायमंड बेचने दीजिए और सारे जौहराते बेचने दीजिए, लेकिन फिर भी एंड रिजल्ट कहाँ होगा आपका? आग की झील में फेंक दिए जाएंगे, यूजलेस रहेंगे आप। ओके, तो ध्यान रखिए, ये सारी सच्चाई है। ठीक है, आगे क्या लिखा है हम पढ़ेंगे, 10 वचन से आगे पढ़ेंगे। गेबा से नहीं, यरूशलेम का न्याय करता है परमेश्वर। ओके, डेंजरस न्याय दिखाया है 12 वचन में जो हमने पढ़ा। 13 वचन से आगे पढ़ेंगे। उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना, चांदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गदहे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे, वे भी ऐसे ही बीमारी से मारे जाएंगे। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेगी। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। यदि मिस्र का कुल वहाँ न आए, तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगी। यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र। और यहोवा के भवन की हांडियों उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हांडियों सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी। और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हांडियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी न पाया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप
हमें वचनों के गहरे भेद सिखाइए पवित्र आत्मा। सच में परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन इतना नज़दीक है खुदा परमेश्वर कि हम अपनी आंखें वचनों के बाहर निकालना नहीं चाहते हैं, वचनों के अंदर गड़े रहना चाहते हैं। हम सहायता मांगते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रोशनी प्राप्त करते जाएं। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। 1 year Bible reading plan, 2 years Bible reading plan, Acts 5 chapter 1 verse 11 verse, Ezra 8 chapter। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 वचन से 11 वचन, इज़रा की पुस्तक 8 अध्याय। हमने फैसला किया है कि अकेले में पढ़ेंगे, इसे पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे, ताकि हम अपने अंदर परमेश्वर के वचन हमें सुधार पाए और हमारे जीवन को बदलते हुए लेकर जाए। हम चाहते हैं ऐसा, लेकिन आप अपनी तरह से पढ़ सकते हैं जैसा आप पढ़ना चाहते। हमने निश्चित यही करना है कि परमेश्वर का आत्मा हमें वचन सिखाना है और परमेश्वर के आत्मा का निश्चित हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमें सहायता कीजिए, आप वचन सिखाइए हमें और वचन के अधीन लेकर आइए, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।